everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 8, which is about multimedia. Okay, first of all we have the introduction regarding multimedia. Let's start with it. The term media refers to various tools and processes used to convey information. Multimedia is typically used to mean the combination of text, sound and or motion video. These deliver information in the form of text, images, audio and video. Multimedia, meaning many media, is a computer technology that presents various content forms in an integrated way. That is, it combines several forms of content in a single computer application. So what they're saying is, ये जो term media है, it means what the various tools and processes होते हैं जिसको हम information को convey करने के लिए use करते हैं. That is what is meant by multimedia. Okay, so multimedia को typically use किया जाता है to convey the combination of text, sound and or motion video. So ये information को deliver करते हैं text, images, audio and video की form में. Multimedia means many media. Okay, ये computer technology है जो various content को एक integrated form में represent करती है. That means what? कि ये several forms of content को एक single computer application में combine करती है. So एक मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मीडिया सोर्सेस का कलेक्शन हम यूज करते हैं. एग्जांपल टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड और ऑडियो, एनिमेशन एंड और वीडियो. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वाइड वेब, hypermedia courseware, interactive TV, virtual reality, multimedia authoring, video on demand, computer games, multimedia database system. So first of all, we have to discuss about what is multimedia system. So a multimedia system is a system capable of processing multimedia data and applications. So multimedia system एक ऐसा system है जो कि आपके multimedia data and applications को process करता है. इसको characterize किया जाता है इसकी processing, storage, generation, manipulation and rendition of multimedia information से. So क्या क्या characteristics है एक multimedia system के? So mainly there are 4 basic characteristics of a multimedia system. Number 1, multimedia system आपका computer control हो सकता है, ये आपका integrated होता है, ये जो information ये handle करता है उसको digitally represent करी जाती है, and interface to the final presentation of media is usually attractive. Then next we have uses of multimedia. What are the different uses of multimedia? First of all, which we have advertising. So advertising जो है वो कुछ past couple of decades में काफ़ी change हो चुकी है and mainly due to the increased use of the internet and business. किसकी वजह से? क्योंकि जो mainly आपका business में internet का use है वो increase हो रहा है जिसकी वजह से advertising के mode and ways भी change हो चुके हैं. So multimedia एक बहुत बड़ा role and बहुत important role play करता है in the field of advertising. As whatever it is with the print or electronic advertisement, they first are prepared on the computer by using professional software and then it is brought in front of the target audiences. What they say, क्योंकि जो भी चीज़ आपके प्रिंट होती है या इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू दिखाई जाती है वो सबसे पहले कंप्यूटर पे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है एंड देन उसको टारगेट ऑडियंस के सामने लाया जाता है. नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन सेक्टर. सो एजुकेशन एरिया में भी जो मल्टीमीडिया है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. ओके, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली अबाउट द स्कूल तो इसका यूसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो. ठीक है, इसको ब्रॉडली यूज़ किया जाता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ओके, यहाँ पे हम ऑडियो का यूज़ करते हैं सो दैट हम एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके इवन इन ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पे चार्ट्स, मॉडल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव मास मीडिया. मास मीडिया व्हाट इज व्हाट कि मल्टीमीडिया सिस्टम का यूज़ मास मीडिया में भी किया जाता है. एग्जाम्पल जर्नलिज्म, ठीक है, वेरियस मैगजीन, न्यूज़पेपर जो कि आपके पीरियडिकली पब्लिश होती है. सो मल्टीमीडिया सिस्टम का यूज़ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिशिंग हाउस में भी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स हैं न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग के एंड अदर स्टफ ऑल्सो विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम. The next we have business presentation. So बहुत सारी companies हैं जहाँ पे information को present किया जाता है business professionals को and it is a required form of communication. So applications जो है already available हैं जिसके through आप great looking presentations को बना सकते हैं and multimedia के through ये applications जो है even better and more effective हो जाती हैं. Then next we have science and technology. So multimedia के एक बहुत wide application है science and technology के field में भी. यानी कि इसको यहाँ पे क्या किया जाता है ऑडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए, मैसेजेस सेंड करने के लिए, अनफॉर्मेटेड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. एंड एट द सेम टाइम मल्टीमीडिया सिस्टम हेल्प करता है इन लाइव इंटरेक्शन थ्रू ऑडियो मैसेजेस एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हाइपर मीडिया. सो ये क्या करता है हमारी टाइम एंड कॉस्ट को रिड्यूस करता है
ओके, जिसको आप अरेंज कर सकते हो एट एनी मोमेंट इवन इन इमरजेंसीज। एंड एट द सेम टाइम आपका यूजफुल है सर्जन्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे इमेजेस को क्रिएट किया जाता है फ्रॉम इमेजिंग scan of human body to practice complicated procedures such as brain removal and reconstructive surgery. Okay, so now we have what components of multimedia. Different components आपको multimedia के given है, like text, audio, still images, animation, video. Okay, now we are going to discuss them one by one, and the first is text. सो टेक्स्ट आपका मोस्ट कॉमन मीडियम है इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट को मोस्टली यूज किया जाता है टाइटल, हेडलाइन, मेन्यू के लिए। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट फाइल को व्यू करने के लिए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा। एंड मोस्टली जो टेक्स्ट फाइल्स है उनको फॉर्मेट किया जाता है विद डॉक, टेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सटेंशन। Then next we have audio. So multimedia में audio means related with recording, playing, etc. So audio एक important component है multimedia का, because ये जो component है वो हमारी understandability and को increase करता है and improve करता है the clarity of the concept audio, that is including speech, music, etc. Now next we come to images. So हर एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी ग्राफिक्स पे बेस्ड होती है। ग्राफिक का जो यूज़ है मल्टीमीडिया में, ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है, प्रेजेंटेबल बनाता है। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है फॉर व्यूइंग ग्राफिक, दैट इज विंडो पिक्चर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सेट्रा। Then next we come to video. Video means what? Moving pictures. Video means what? ऐसी पिक्चर्स जो मूव करती है along with the sound. ठीक है, सो ये आपका बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर। सो मल्टीमीडिया में ये क्या करता है, इसका यूज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, एंड इट सेव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो। नेक्स्ट इज एनिमेशन। सो कंप्यूटर एनिमेशन का यूज किया जाता है इमेजेस में चेंजेस करने के लिए, सो दैट जो सीक्वेंस है इमेजेस का वो अपीयर हो एज मूविंग पिक्चर्स। ओके, सो एक एनिमेटेड सीक्वेंस क्या करता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स को शो करता है पर सेकेंड, सो दैट एक इफेक्ट ऑफ मोशन बनाया जा सके इन द यूजर्स आई। नेक्स्ट वी कम टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एक ऐसा कंप्यूटर जो आपका टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन को हैंडल करता है, उसको आप मल्टीमीडिया कहते हैं। एंड दीज आर द बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ सच अ कंप्यूटर। ओके, नंबर 1 कलर मॉनिटर एंड वीडियो कार्ड, सो दैट यहाँ पे मल्टीमीडिया कॉन्टेंट को डिस्प्ले किया जा सके। देन CD रोम और DVD रोम ड्राइव, जिसमें हम मल्टीमीडिया सीडीज या DVD को प्ले कर सकते हैं। देन स्पीकर एंड साउंड कार्ड for playing audio, and then microphone for recording sound. Okay, next we come to advantages of multimedia. Multimedia के क्या क्या advantages हैं। Number 1 creativity. So multimedia क्या करता है, discussions में more life generate करता है। वैरायटी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स या ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर को कैटर कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, मल्टीमीडिया मोस्टली रिक्वायर वन टाइम परचेज ऑफ डिवाइस, यानी कि मल्टीमीडिया में वन टाइम परचेज करना पड़ता है डिवाइसेस सॉफ्टवेयर का, ओके, जिनको आप अनलिमिटेड टाइम बाद में यूज कर सकते हैं। देन इवैल्यूएशन, ये आपको आइडल लर्निंग असेसमेंट टूल प्रोवाइड करता है, जिसको आप, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग होता है फॉर द स्टूडेंट्स। देन वी हैव रियलिस्टिक अप्रोच, ये आपको अप्रोचेस प्रोवाइड करता है जो कि लर्निंग को मोर रियलिस्टिक बनाती हैं। देन वाइड वैरायटी ऑफ सपोर्ट, मल्टीमीडिया फॉर्मेट जो है अवेलेबल हैं फॉर यूज, जिसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं विच इज बीइंग एबल टू क्रिएट मल्टीमीडिया। द नेक्स्ट वी हैव ट्रेंडी, सो जो करंट ट्रेंड है कल्चर का, इट लीड्स टुवर्ड टेक्नोलॉजी एंड देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है फॉर डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट। Then we have disadvantages of multimedia, and the first is accessibility. तो multimedia में electricity required होती है to operate, जो कि आपके हर एक rural area में available नहीं है, so that means it may not be consistently available due to shortages and blackout. Then we have distracting multimedia, जो है आपके focus को क्या दूर लेके जाता है from the lesson, क्योंकि ये आपके क्या attention grabbing formats की वजह से। Then कॉस्टली, सो मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है देन अदर्स, बिकॉज ये आपका मोर देन वन मीडियम से बना होता है। एंड देन मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है। मल्टीमीडिया में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है टू रन, जो कि उसकी कॉस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। देन नेक्स्ट वी हैव टाइम कंज्यूमिंग, सो मल्टीमीडिया क्रिएट करने में काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर मास्टरी, मल्टीमीडिया के अंदर एक कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए उसको मास्टर करने के लिए, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है एंड एनर्जी ले सकता है फ्रॉम द यूज़र। देन इज लिमिटेड सपोर्ट एंड कंपैटिबिलिटी, सो वाइड वैरायटी ऑफ गैजेट मॉडल है जो कि अराउज करते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज ऑफ मीडिया फॉर्मेट।
देन इज फ्रेजाइल, जो डिवाइस हम मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी बहुत केयर के साथ यूज़ करी जानी चाहिए। एक्सपोजर टू मॉइस्चर या बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कर सकते हैं। एक्सपेंसिव इररिपेयरेबल डैमेज कॉज कर सकता है जिसमें आपको दूसरा परचेज करना पड़ जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। Now next we come to multimedia software. So softwares जो कि यूज़ किए जाते हैं for creating and accessing multimedia कंटेंट उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप मल्टीमीडिया कंटेंट को क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है जो जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स they have shown you of the software which are used for creating multimedia. Number 1, MS PowerPoint. The MS PowerPoint यूज़ किया जाता है for creating presentations. Adobe Director and Multimedia Builder, इसको यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया थॉरिंग के लिए. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Corel Draw, इसको ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. Adobe Flash का यूज़ किया जाता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए. Adobe Audition का यूज़ किया जाता है ऑडियो एडिटिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया. सो स्ट्रीमिंग मीडिया जो है वो क्या है, वीडियो और ऑडियो कंटेंट है जिसको कंप्रेस्ड फॉर्म में सेंड किया जाता है ओवर द इंटरनेट एंड उसको इमीडिएटली प्ले करते हैं रादर देन बीइंग सेव्ड टू द हार्ड ड्राइव. सो स्ट्रीमिंग मीडिया के साथ एक यूजर को क्या करना पड़ता है, इट डज नॉट हैव टू वेट टू डाउनलोड अ फाइल टू प्ले इट, बिकॉज यहाँ पे मीडिया जो है कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा में सेंड किया जाता है. जैसे ही आप इस कोई अराइव होगा आप इसे प्ले कर सकते हैं. यूज़र पॉज कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है, फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है, जैसे कि आप इन डाउनलोड फाइल के साथ करते हैं. सिमिलरली यू कैन डू विद दिस ऑल्सो, अनलेस जो कंटेंट है वो आपका स्ट्रीम नहीं किया जाता लाइव. सो कुछ एडवांटेजेस हैं स्ट्रीमिंग मीडिया के. नंबर 1 क्या कि ये पॉसिबल बनाता है यूजर्स के लिए कि वो इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस का एडवांटेज ले सके, लाइक वीडियो सर्च एंड पर्सनलाइज प्लेलिस्ट. देन ये क्या करता है, कंटेंट डिलीवर्स को अलाउ करता है टू मॉनिटर कि विजिटर्स क्या वॉच कर रहे हैं एंड कितनी समय से उस पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो को वॉच किया जा रहा है. एक एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, बिकॉज सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट उस फाइल का जो कि आपका ट्रांसफर हो रहा है वही वो पार्ट है जिसको आप वॉच कर सकते हैं. ठीक है. देन ये क्या करता है, कंटेंट क्रिएटर को प्रोवाइड करता है विद मोर कंट्रोल ओवर हिज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज यहाँ पे जो वीडियो फाइल है वो व्यूअर से कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होती है. एक बार वीडियो डेटा आपका प्ले हो गया वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा बाय द मीडिया प्लेयर. सो मीडिया को यूजुअली स्ट्रीम किया जाता है फ्रॉम प्री रिकॉर्डेड फाइल्स. ओके, लेकिन ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट हो सकता है ऑफ अ लाइव ब्रॉडकास्ट फीड. सो लाइव ब्रॉडकास्ट में वीडियो सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है कंप्रेस्ड डिजिटल सिग्नल में एंड उसको ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अ वेब सर्वर एज अ मल्टीकास्ट. ओके, जिसमें एक सिंगल फाइल को मल्टीपल यूजर तक सेंड किया जाता है एट द सेम टाइम. ठीक है. सो स्ट्रीमिंग मीडिया को ट्रांसमिट करता है सर्वर एप्लीकेशन के थ्रू एंड देन रिसीव एंड डिस्प्ले किया जाता है इन रियल टाइम बाय अ क्लाइंट एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड अ मीडिया प्लेयर. सो मीडिया प्लेयर आपका एक इंटीग्रल पार्ट भी हो सकता है ब्राउजर का, एक प्लग इन या सेपरेट प्रोग्राम या एक डेडिकेटेड डिवाइस सच एज एन आईपॉड. फ्रीक्वेंटली वीडियो फाइल्स आपके एम्बेडेड प्लेयर्स के साथ आती है. यूट्यूब वीडियोस फॉर एग्जांपल ये आपके एम्बेडेड फ्लैश प्लेयर्स में ही रन करती हैं. एंड स्ट्रीमिंग मीडिया क्या करता है, स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजीज आपका क्या हो चुका है, सिंस 1990s काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, जहाँ पर जो डिलीवरी थी टिपिकली अनइवन हुआ करती थी. हाउएवर जो क्वालिटी है स्ट्रीम कंटेंट की वो अभी भी डिपेंडेंट है अपॉन द यूजर्स कनेक्शन स्पीड. Then next we have desktop publishing. So एक पर्सनल कंप्यूटर वर्कस्टेशन का जब यूज़ किया जाता है हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कहा जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग. सो एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है कि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप फेसेस का यूज़ कर सकते हैं एंड वेरियस मार्जिन एंड जस्टिफिकेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस एंड ग्राफ्स को एम्बेड कर सकते हैं डायरेक्टली इनटू द टेक्स्ट. एंड जो मोस्ट पावरफुल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम है वो अनेबल करता है कि आप यहाँ पे इलस्ट्रेशंस को क्रिएट करेंगे बाय लेस पावरफुल सिस्टम डेट यू इंसर्ट इलस्ट्रेशंस क्रिएटेड बाय अदर प्रोग्राम्स. सो जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं. तो लाइन सेपरेटिंग सच प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप पब्लिश सिस्टम इज बिकमिंग ब्लर्ड. सो इन जनरल दो डेस्कटॉप पब्लिकेशन एप्लीकेशंस आपको ज़्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं ओवर टिपोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक such as kerning and more support provide करती है for full color output. ओके, एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फीचर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम का, दैट इज व्हाट कि ये आपको अलाउ करता है कि यहाँ पे आप डिस्प्ले स्क्रीन को एग्जैक्टली उस तरीके से देख सकते हो जैसे आपका डॉक्यूमेंट अपीयर होगा व्हेन इट इज गेट प्रिंटेड. ओके, एंड सिस्टम जो इस फीचर को सपोर्ट करते हैं दैट इज व्हाट WYSYWYG, दैट इज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट.
Then next we have advantages of DTP. So डेस्कटॉप पब्लिशिंग के साथ आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के अपीयरेंस को एनहांस कर सकते हैं, एंड क्रिएटिविटी लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड द टाइम विच इज टेकन फॉर प्रिंटिंग एंड प्रोड्यूस कस्टमाइज डॉक्यूमेंट, वो टाइम भी आपको रिड्यूस हो जाता है. एंड जो बेस्ट पार्ट है अबाउट DTP इज वॉट कि यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट द नीड फॉर ग्राफिक डिजाइन. ओके, so see what are the advantages. Number 1, enhance appearance with page layout. यहाँ पे आपका जो appearance है वो enhance हो जाता है with page layout. So एक page layout क्या होता है? The process of arranging. एक ऐसा process जहाँ पे आप rearrange करते हैं अपने text या graphics को on a page, that is known as a page layout. सो कस्टमर जो है वो आपके कंटेंट को रीड करता है एंड देन जो नेक्स्ट स्टेप वो लेता है दैट इज बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. सो DTP के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने पेज लेआउट को इम्प्रूव कर सकते हो एंड एक इफेक्टिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, उस कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस करके, स्पेस एंड कलर्स को बैलेंस करके, जो कि आपके कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करेंगे. एंड एक एनहांस अपीयरेंस, इसमें एक अट्रैक्टिव पेज लेआउट होता है आपके सेल्स ब्रोशर पे, बुकलेट या फ्लायर पे, इज श्योर टू ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन सेल. Then easy customization for any type of document. So DTP क्या करता है, उस वे को revolutionize करता है जिसमें आपके कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज आपकी कंपनी के बारे में सोचेंगे. सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव एंड कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक audience. Whether it is a press release, menu graph, statement, proposal, newsletter, flyer, catalog, schedule और name tag, आप effectively यहाँ पे सभी फील्ड में डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर योर बिजनेस. देन वी हैव रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट. सो एडवांस्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूजुअली जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है स्पेशलाइज पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर पे, लाइक क्वार्क, एक्सप्रेस, अडोब फोटोशॉप, अडोब InDesign और इलस्ट्रेटर. सो हाउएवर जब आप क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं DTP को, आपको वहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होते DTP इक्विपमेंट्स पे या फिर सॉफ्टवेयर एंड रेगुलर अपडेट्स पे. सो ये आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है वाइल आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है टू टॉप नच क्वालिटी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सर्विसेज. Okay, then we have DTP software. So कुछ popular DTP software packages हैं like Adobe InDesign, Quark Express, Corel, Ventura, Adobe FrameMaker and Microsoft Publisher. ये पैकेजेस अलाउ करता है यूजर को कि हम अपने पेज लेआउट्स को डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल, बॉर्डर, लोगोज एक्सेट्रा के साथ. इसमें आपका बिल्ट इन पिक्चर्स एंड डिजाइंस भी होते हैं जिसको आप एक पब्लिकेशन की डिजाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट ये आप ई बुक या इलेक्ट्रॉनिक बुक, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है प्रिंटेड बुक का जिसको आप रीड कर सकते हैं एक पर्सनल कंप्यूटर या हैंड हेल्ड डिवाइस पे, जो कि स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए डिजाइन होती है. ठीक है, सो एग्जांपल्स हैं दैट इज Amazon Kindle, Sony रीडर, Apple iPad. ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ई बुक? लेट अस डिस्कस दैट. नंबर 1 इज व्हाट, लो अपडेट कॉस्ट. सो जब ऑथर को क्या करना है, अपडेट करने हैं अपनी ई बुक के कुछ पार्ट्स को, सो वो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं एंड अपडेटेड वर्जन को सेव करके कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट द न्यू रिलीज. कस्टमर क्या करते हैं, उनको या तो डाउनलोड पेज भेज दिया जाता है वेब पे या ईमेल कर दिया जाता है द न्यू वर्जन. एंड एक प्रिंटेड बुक के केस में जो पब्लिशर है वो प्रोबेबली क्या करता है, मिनिमम प्रोडक्शन जो करता है वो अबाउट 1000 कॉपीज तक का करता है जिसमें कि ज़्यादा टाइम एंड मनी लगता है. Next we come to multimedia format. So unlike your usual printed books, अगर आप अपनी usual printed books की तरह देखो, so e-books के अंदर सिर्फ टेक्स्ट एंड इमेजेस नहीं होती बल्कि ऑडियो एंड इवन वीडियोस भी होते हैं. एंड इस तरीके से अगर जो रीडर है वो इस टाइप का पर्सन नहीं है जिनको पैराग्राफ और टेक्स्ट पढ़ना पसंद है, सो वो सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑडियो वर्जन को सुन सकते हैं. कुछ ऐसी ई बुक्स भी हैं जिनमें फ्लैश एप्लीकेशंस हैं जो कि रीडर को अलाउ करती हैं टू इंटरैक्ट विद द कंटेंट्स. यानी कि क्या, यहाँ पे आप इमेजेस ड्रैग कर सकते हो अराउंड अपने माउस को यूज़ करके, एंड ये काफ़ी यूजफुल होता है फॉर द किनेस्थेटिक लर्नर्स. Then we come to the next advantage of ebook, that is searchable. So एक number of ebooks है जो कि सपोर्ट करती है सर्च बटन को, यानी कि अलाउ करता है कि आप क्विकली किसी भी पेज पे जा सकते हो, जंप कर सकते हो, even containing the word you are not interested in. Okay, so ever try opening a dictionary, that is the printed one. So एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को आप ट्राई कर सकते हैं एंड जो उसकी सर्च फीचर है उसकी स्पीड को मावल कर सकते हैं. Then no shipping cost.
सिंस वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल के साथ डील कर रहे हो, सो आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है उसको वेब से। इसमें कोई भी शिपिंग नहीं होती, यानी कि कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट को आपको शिप नहीं करना पड़ता हाफ वे अराउंड द ग्लोब, एंड ना ही आपको वेट करना पड़ता एज लॉन्ग, जैसे आप नॉर्मली क्या करेंगे, बुक्स को ऑर्डर करते हैं फ्रॉम से अमेजॉन, आपने ऑर्डर करी तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस एन ई बुक। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बुक्स। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ई बुक्स के। नंबर 1, नॉट कन्वीनियंट टू रीड। ठीक है, सो हु वांट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन फॉर आवर्स जस्ट रीडिंग अ ई बुक, राइट? सो असाइड फ्रॉम गेनिंग वेट, सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम कैन कॉज मसल स्ट्रेन, बैकएक एंड इवन एन एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो कौन एक ऐसा पर्सन होगा जो कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा रहेगा घंटों तक एंड तब जाके क्या करेगा, सिर्फ अपनी ई बुक को पढ़ रहा है? ओके, सो उससे क्या है, आप वेट तो गेन करेंगे साथ में क्या, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम पीरियड तक बैठे हो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उससे आपको मसल स्ट्रेन, बैक एक एंड इवन आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है। द नेक्स्ट वी कम टू प्रिंटिंग कॉस्ट। सो इट्स पेनफुल टू रीड ऑफ अ स्क्रीन। एक स्क्रीन को पढ़ना जो है बैठकर, वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, एंड इसीलिए कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं टेक्स्ट को पेपर पे पढ़ना। ठीक है, एंड अगर आप एक ई बुक को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके कस्टमर्स जो है उसको मोस्टली क्या करेंगे, दे विल लाइक टू प्रिंट इट। सो एंड इफ योर ई बुक इज क्वाइट लॉन्ग, एंड अगर आपकी ई बुक बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, सो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो आपके रीडर्स को ही भरनी पड़ेगी। सो एक प्रिंटेड बुक जो है ऑन द अदर हैंड ऑलरेडी बाउंडेड होती है एंड रेडी टू टेक होती है एनीवेयर। देन द लास्ट इज पायरेसी। सो प्रिंटेड बुक वर्ल्ड में लोग जो आपके शेयर करते हैं बुक को, वो उसे फोटो कॉपी कर सकते हैं एंड देन उसको अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं। लेकिन ई बुक्स के साथ क्या है, आपकी जो फाइल है वो ईजिली ईमेल करी जा सकती है टू समवन जो कि आपके 1000 ऑफ माइल्स भी बैठे हुए हैं। इवन आप इसे क्या कर सकते हो, एक पब्लिक सर्वर पे किसी भी पर्सन के लिए प्लेस कर सकते हो टू डाउनलोड। सो पेपर बुक के साथ आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, चाहे आप उसको खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, इनसाइड द एलिवेटर फॉर एग्जांपल। सो दैट्स नॉट द केस विद ई बुक्स, लेकिन ई बुक्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of multimedia and its various components. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Take care and thanks to everyone.